کے بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب گئے ہیں۔ مہنگی چینی کا ذائقہ عوام کے لیے کڑوا ہو گیا۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں چینی 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ چینی کی قیمت ملک کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگی چینی بھی سرائکیوں کے لیے نایاب ہو گئی ہے۔ کہا مہنگی چینی بھی مارکیٹ سے نہیں مل رہی، آخر عوام جائے تو جائے کہاں؟ حکومت نے غریب کا جینا محال کر دیا ہے۔ عوام کی دہائی آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ جنوبی پنجاب کے عوام مہنگائی کے سونامی میں ڈوب چکے ہیں۔ مہنگی چینی کا ذائقہ عوام کے لیے کڑوا ہو گیا ہے۔ ملتان، ڈی جی خان، بہاولپور، رحیم یار خان سمیت دیگر شہروں میں چینی 150 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی ہے۔ چینی کی قیمت ملک کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ مہنگی چینی بھی سرائکیوں کے لیے ایک خواب بن گیا ہے۔ رحیم یار خان میں چینی کی فی کلو قیمت 145 سے 150 تک پہنچ گئی ہے۔ ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ کہتے ہیں عمران خان ایک طرف سے ریلیف دینے کا اعلان کرتے ہیں تو دوسری طرف ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر، بتائیے گا۔ بالکل، رحیم یار خان میں مہنگائی کا سونامی بے قابو ہو چکا ہے اور اس سے ایک عام آدمی جو ہے اس کی چکی میں پس رہا ہے۔ رحیم یار خان کے ڈسٹرکٹ بار کے عہدیداران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ، آپ ادھر آج ڈسٹرکٹ بار میں تشریف لائے۔ وکیل ہمیشہ معاشرے کی جو ہے وہ ترجمانی کرتا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس منہ زور مہنگائی کے خلاف ڈسٹرکٹ بار کی کیبنٹ نے اور پورے وکلا نے ایک احتجاجی ریلی نکالی تھی۔ اور مہنگائی کا جہاں تک تعلق ہے تو مہنگائی تو اتنی بے قابو ہو گئی ہے کہ اب تو جو کار والا ہے وہ بیچارہ پیٹرول کی قیمت کی وجہ سے موٹر سائیکل پہ آ گیا ہے، اور جو موٹر سائیکل والا ہے وہ بیچارہ سائیکل صحیح کروا رہا ہے۔ تو مہنگائی نے تو غریب کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک رات آ کے جو ہے وہ قوم کو نوید دیتے ہیں کہ آپ کو ہم پیکج دے رہے ہیں، اور دوسرے دن پیٹرول کی قیمت 9 روپے کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی ظلم ہے، زیادتی ہے۔ کامران صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس مہنگائی کے حوالے سے؟ عوام کی طرف سے آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گے؟ عوام کی طرف سے مطالبہ یہی ہے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے نا، یہ عوام نہیں چاہتی کہ اب یہ رہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وزیر اعظم صاحب جب آئے تھے تو کہتے تھے مینڈیٹ سے آئے ہوں، تو مہنگائی کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں۔ یہ عام عوام کو بالکل یہ تباہ و برباد کر دیا۔ میں سرمایہ داروں کی بات نہیں کرتا، لیکن جو عام طبقہ ہے، جو عام لوگ ہیں، ان کو بنیادی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ کیسی جمہوریت ہے اور یہ کیسی حکومت ہے؟ کیسی حکومت ہے، کیسی جمہوریت ہے؟ وکلا برادری نے جو ہے مزید اگلے جمعے کو احتجاجی ریلی نکالنے کے حوالے سے اعلان بھی کر دیا، اور مہنگائی کے حوالے سے حکومت پر جہاں پہ تنقید کی ہے تو میں مطالبہ چینی نایاب ہو چکی ہے۔ عامر، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بہاولپور میں چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ سرکاری چینی مارکیٹوں سے نایاب ہو گئی ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں قیمت 150 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ چینی بحران سے دکاندار اور شہری دونوں پریشان ہیں۔ چینی مل نہیں رہی، اور دکاندار پہ جو 90 روپے کلو والی ہے وہ تو سرکاری چینی تو بالکل دے ہی نہیں رہے، نہ دکانداروں کے پاس ہے۔ اگر وہ موٹی چینی ہے تو وہ بھی 150 روپے وہ بھی نہیں دے رہے۔ چینی بہت مہنگی ہو گئی، ہمارے پاس چینی نہیں مل رہی۔ جو ریٹیل اسٹور پہ جہاں بھی جاؤ، جس دکان پہ بھی جاؤ، چینی نہیں مل رہی۔ آج 500-700 روپے میں کیا گزارا ہوتا ہے؟ خان صاحب مہربانی کریں، چینی ہمیں مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں مل رہی۔ 140 روپے 50 روپے، ہم غریب بندے کہاں سے چینی لیں گے اتنی مہنگی؟ پوری مارکیٹ، پوری بازار جہاں مرضی جاؤ چینی نہیں ہے۔ آپ کا وزیر اعظم بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ تو کہتے تھے جی چیز نہ ملے جس حکومت میں جی مہنگائی ہوگی وہ وزیر اعظم چور ہوگا، یعنی کہ اب آپ اس طرح کے ہی وہ کریں گے؟ نواز شریف وہ زرداری جیسے کام کر رہے ہیں، آپ کو ووٹ دے کے ہم پچھتا رہے ہیں۔ سب سے مین ہم آتے ہیں چینی کے اوپر۔ چینی کہیں سے ملتی نہیں ہے، ریٹ اتنا ہائی ہے، اور جہاں پہ جائیں وہ کہتے ہیں کہ چینی نہیں ہے۔ چینی کہاں سے خریدے؟ جو بندہ صبح کو کام کرے، شام کو جا کے چائے پیے، تو چائے کے لیے بھی چینی نہ ہو تو ہم کہاں سے کریں گے؟ یار ہر چیز مل رہی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ لے رہا ہے۔ مزدور تنگ ہے، غریب تنگ ہے۔ بات تو یہ ہے نا، مل کون سی چیز نہیں رہی؟ سونا نہیں مل رہا، جس کے پاس سخت ہے وہ سونا بھی خرید لیتا ہے۔ یہ تو بات نہیں ہے نا، مگر حکومت نام کی عوام کو بجلی کا 440 واٹ کا جھٹکا۔ بجلی ایک بار پھر مہنگی ہو گئی۔ بجلی مہنگی ہونے سے لودھراں کے شہری خاصے پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی سے جینا مشکل ہو گیا ہے، آئے روز قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں مشتاق بھٹا سے۔ جی مشتاق۔ آٹا، گھی، چینی اور شائع خوردنوشت پہلے سے مہنگی تھی۔ پیٹرول ڈیزل مہنگا کیا گیا، اور اس کے بعد بجلی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے شہری بہت زیادہ
परेशान नजर आते हैं। मेरे साथ अंजुमन ताजरान के साबिक सदर तासिम मसूद भट्ट साहब हैं। भट्ट साहब क्या कहेंगे, आज बिजली भी महंगी होगी? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल रोज़ाना की बुनियाद पर है कि आए रोज़ चीनी, घी, दालों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और परसों पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ और आप कल फिर बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है एक आम आदमी के लिए, एक मुतवसत जो जिनकी आमदनी है उस तबके के लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हुकूमत को चाहिए कि फ़ौरन ऐसे इकदाम करे जिनसे आम आदमी के लिए वो आम आदमी को कोई रिलीफ मिल सके। जी, एक और शहरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ऐसे हालात में हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत अपनी बेबसी के रोने रोती है, हुकूमत भी आके महंगाई के रोने रोती है, क्या मशवरा देंगे आप? देखें, बेसिकली पूरी दुनिया में कमोडिटीज़ के रेट जो हैं वो आम इंसानों की पहुंच में होते हैं और जब कमोडिटीज़ मींस घी, दाल, चावल, दूध, अगर ये आपकी पहुंच से दूर हो जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। यहाँ पे मसला ये है पाकिस्तान में कि कार्टेल्स का, माफियाज़ का राज है। अब जिस बड़ी गुत्थी को खोलें पीछे से आपको 2-4 बंदे नज़र आएंगे जो कि अपने जेबें भरने के लिए पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करते हैं। दूसरा, हम देखते हैं कि फटैफ की वजह से IMF के साथ निगोशिएशंस जो सक्सेसफुल नहीं रही, उनकी वजह से भी हुकूमत पे बड़ा प्रेशर होता है, फिर इसलिए रातों रात रेट बढ़ा दिए जाते हैं और आम आदमी मज़ीद गुर्बत की चक्की के तले पिसता चला जाता है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि अगर चीज़ों को हमने ठीक करना है, आदमी तक हुकूमत ने अपनी स्ट्रेटजीज़ के समरात पहुँचाने हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें इन माफियाज़ और कार्टल्स पे काबू पाना चाहिए। इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स अगर मिल के काम नहीं करेंगे तो फिर ये मज़ीद रेट्स बढ़ते जाएंगे और रात की तारीकी में आप सोएंगे और सुबह आप देखेंगे कि फिर रेट जो है पेट्रोल के और कमोडिटीज़ के और सब्जियों के और गोश्त के रातों रात बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल, शहरी पर मुश्ताक भुट्ट, आपका शुक्रिया। हुकूमत का आवाम को 440 वाट का झटका, बिजली की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। फी टैरिफ यूनिट 1 रुपये 68 पैसे हो गया है। अलीपुर में बिजली की कीमत में इजाफे पर ताजिर बरादरी शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानते हैं अली हसन से। जी अली हसन। हुकूमत की जानिब से आवाम को 440 वोट का झटका लगा दिया गया है। बिजली एक बार फिर महंगी हो गई है। 1 रुपये 68 पैसे फी यूनिट जो है बिजली में इजाफा कर दिया गया है। इस हवाले से जो ताजिर हैं, शहरी हैं, शदीद परेशान हैं। मेरे साथ चंद ताजिर मौजूद हैं, मजीद मैं उनसे जान लेता हूँ। जी बताइएगा कि बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें जी, हुकूमत ने महंगाई ज़्यादा की है, इस पर हम हुकूमत से इजाज़ करेंगे और इजाज़ हमारा हक भी बनता है। महंगाई की वजह से हम पहले भी परेशान हैं, सील्स कम हो चुकी हैं, वहाँ हमारे पास ये कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं, सील्स कम हो चुके हैं, चीनी महंगी हो चुकी है। अब हुकूमत ने कल रात में मुझे पता चला है कि 1 रुपये 68 पैसे बिजली महंगी कर दी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस महंगाई को वापस से लिया जाए। हम इसको मज़ीद ज़्यादा तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी बताइएगा आप। हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ 1 ਰੁਪਏ 68 ਪੈਸੇ ਜਾਂ 70 ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ, ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲ ਹੋਵੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ कोई बंदा ही बिजली का बिल नहीं भर सकेगा जनाब। हाँ जी बिल्कुल। अली हसन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेट्रोल बम के आफ्टर इफेक्ट्स आना शुरू हो गए। बहावल नगर के ट्रांसपोर्टर्स ने बसों और वैगनों के किरायों में भी इजाफा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे कासिम अली शेख से। जी कासिम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद किरायों की मद में भी इजाफा कर दिया गया। हुकूमत जो है वो पेट्रोल तेल की कीमत में जब इजाफा करती है तो हर तरफ महंगाई की नई लहर जो है वो सामने आएगी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस स्टैंड पर, जहाँ पर शहरी जो है वो किराया बढ़ाने पर जो वो सरापा एहतजाज भी है और हुकूमत से सख्त नाराज भी दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं, आप बताइएगा जी, तेल के बाद अब जो है वो किराए में भी इजाफा कर दिया, क्या कहते हैं? मैं जी हरुणाबाद जा रहा, अगे 80 रुपये किराया हैगा सी, ਹੁਣ 100 रुपये करता। पेट्रोल की कीमत बहुत वध गई, वो कहते ने इस वजह तो किराया बढ़ा दिता गया। हुकूमत जो है बड़ा किराया तेल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई है। कहते असी की करिए, साड़ी मजबूरी है। लाहौर का किराया पहले थोड़ा सी, उन्होंने 40-50 रुपये बढ़ा दिता है। कहते असी की करिए जी, पेट्रोल ज़्यादा हो गया। हुकूमत को चाहिए महंगाई घट करे
बड़ी महंगाई हो चुकी है, दिहाड़ी लगती नहीं बंदे दी। जी बिल्कुल, हुकूमत जो है वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे, कीमत में इजाफा। कासिम, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डेरा गाजी खान में वर्कर्स कन्वेंशन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इंसाफ हाउस कोर्ट चुठा में पंडाल सजा दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा कहां तक पहुंची तैयारियां? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन के लिए इंसाफ हाउस को चट्टा में जो पंडाल है वो सजा दिया गया है। तमाम तर इंतजामात जो हैं वो अरूज पर हैं। पार्टी कारकुन जो है मार्सजात संचना इन तमाम तर इंतजामात को देखने और उनका कहना है कि फ़कीदुल मिसाल इस्तिकबाल होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मार्सजात संचना पार्टी कारकुन हैं। एक अरसे से आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो लगाओ और आप पार्टी कारकुन है, तो अब पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन होने जा रहे हैं, तो किस तरीके से जो है देख रहे हैं और क्या इंतजामात कहाँ तक पहुँचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, बहुत अरसे के बाद एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा है जो कि दरमियान में हमारा 2-3 साल गैप आ गया था और लोगों का ख्याल था कि महंगाई हो गई है तो इस वजह से शायद पार्टी की पॉपुलैरिटी कम हो गई है। ऐसा नहीं है, हमें पूरे इमरान खान के विजन पे पूरा हमें यकीन है। हम जैसे 10 साल पहले थे, आज भी हमारा जज्बा उनके लिए हम तमाम वर्करों का उसी तरह है। हमें पता है इस मुल्क को, कौम को अगर निकालेगा तो इमरान खान ही निकालेगा। तो ये आज हमारा मकसद, हमारे जनूबी पंजाब के सदर जो कि वर्कर्स के हक में हैं, जनाब ओन अब्बास बप्पी साहब, जब से साउथ पंजाब में वो आए हैं उसके बाद से जितने भी नज़रियाती और रियल वर्कर पीटीआई के थे उनके अंदर ना एक जज्बा आ गया है, दोबारा से वही कैफियत आ गई जो 2010, 12 और 13 के जलसों में हुआ करती थी। ये उसकी आज देखें, हम सब तमाम वर्कर्स अपने इख्तलाफात ख़त्म करके एक ही जगह पर हम इंसाफ हाउस इकट्ठे हो गए। ये इस बात का सबूत है कि हम वर्कर का जज्बा जैसे कल था वैसे आज है और इंशाल्लाह वैसे ही रहेगा, ज़ाती मफाद को ख़त्म करके। तो इंशाल्लाह हम भरपूर इस्तकबाल करेंगे अपने लीडर का और ताकि हम दिखाएंगे कि डेरा गाजी खान के अंदर पीटीआई वर्कर आज भी है और इकट्ठे हैं, कोई इख्तलाफात नहीं है। इंशाल्लाह हम मुल्क को, कौम के लिए हम हर वक्त खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। जी बिल्कुल जो है हाजिर रहेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह। सही रजा मलिक, आपका शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास, शहर औलिया की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम फैसले। इजलास में डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम, अरकान कौमी सूबाई असम्बली और तमाम सरकारी इदारों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में शहर की बड़ी स्कीम्स की मंजूरी दे दी गई है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, बताइएगा इजलास में और क्या अहम फैसले किए गए? जी बिल्कुल, शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। डीसीसी फोरम में जो है डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान समेत जो ज़िला मुल्तान के तमाम अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं वो और इसके साथ साथ जो तमाम इदारों के सरबराहान हैं वो शरीक हुए हैं। इस अहम इजलास में शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम फैसले भी किए गए हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए तो शहर में ट्रैफिक के मसाइल के हल के हवाले से मुल्तान का सबसे अहम जो गोसन रोड है वहां पर जो जायद यू टर्न्स बनाए गए हैं ट्रैफिक के हवाले से, जो ट्रैफिक फ्लो के हवाले से बड़ी रुकावट बन रहे हैं, उन्हें खत्म करने का फैसला भी किया गया है। इसके साथ साथ ट्रैफिक मसाइल के हल के हवाले से गोसन रोड पर जितने भी जो स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनमें जो छुट्टी का वक्त है और उसके साथ साथ जो उनके बच्चों के आने का वक्त है वो भी तब्दील करने का फैसला किया गया है। खासतौर पर अगर शहर की तरक्की के हवाले से बात की जाए तो जिला मुल्तान में 3 फ्लाईओवर्स और अंडरपास बनने हैं, उनके हवाले से भी हतमी तौर पर डीसीसी फोरम में मंजूरी दे दी गई है। खासतौर पर अगर बात की जाए तो मुल्तान शहर के जो 3 मकामात हैं जहां पर ट्रैफिक के फ्लो के हवाले से जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो नस्ब किए जाएंगे, डीसीसी फोरम ने इस मंसूबे की भी मंजूरी दे दी है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी इस इजलास में शरीक हुए। उनका ये भी कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के जो सम्राट हैं वो भी आना शुरू हो चुके हैं। अवाम की सहूलत के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्कीमें हैं, एडीपी मंसूबे हैं, उन्हें बर वक्त मुकम्मल किया जाए। और वज़ीर ख़ारजा का ये भी कहना था कि जो मुख्तलिफ जो मंसूबे हैं उसमें जो SAP 1 में जो बचत की गई है जिला मुल्तान में, उनके हवाले से भी जो तरक्याती स्कूलों के हवाले से वो प्लान भी है तलब कर लिया गया है। खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का ये भी कहना था कि जिला मुल्तान में अब तक जो है तरक्याती स्कीमों के हवाले से जो माली साल है उसके
23% फंड आ चुके हैं, जिसमें वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने एक अल्टीमेटम भी दिया है तमाम सरकारी इदारों को अगले इजलास से कबल के तमाम जो सरकारी इदारे हैं वो तरक्याती स्कीमों के 23% फंड जो है उनके इस्तेमाल को यकीनी बनाए जाएं। अहम इजलास हुआ है मुल्तान के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में, जिसमें तमाम अरकाने असम्बली शरीक हुए, वजीर खारजा भी शरीक हुए हैं, जिसमें शहर की तामीर और तरक्की के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाएगा। गोहर रहमान, आपका शुक्रिया। यूनियन काउंसिल 4656 में वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली का मंसूबा, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। एमडी वासा नासिर इकबाल भी उनके हमरा मौजूद थे। आपको अपडेट करते चले मुल्तान से। यूनियन काउंसिल 4656 में वाटर सप्लाई लाइनों की तब्दीली का मंसूबा, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक ने मंसूबे का इफ्तिताह किया। सीवरेज वाटर सप्लाई के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर अख्तर मलिक का ऐसा कहना है। मुल्तान डिवीजन के सरकारी डिग्री कॉलेजेस में पीने के साफ पानी की फ्राहमी का मंसूबा, इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा गोहर रहमान से। जी गोहर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन के स्कूल और कॉलेजेस में साफ पानी की फराहमी के हवाले से मुल्तान की डिवीजनल इंतजामिया की जानिब से इकदामात का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की जानिब से मुल्तान के डिग्री कॉलेज 14 नंबर पर जो है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स है उसका भी इफ्तिताह किया गया है। मजीद क्या करने जा रहे हैं साफ पानी की फराहमी के हवाले से, कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे मुल्तान में एक ये था कि काफ़ी सारे जो हैं फिल्ट्रेशन प्लांट लगे हुए हैं, उसमें से कुछ फंक्शनल हैं और कुछ डिसफंक्शनल हैं। जो फंक्शनैलिटी के हवाले से हम उसका एक डाटा बैंक बना रहे हैं विद कोऑर्डिनेट्स, ताकि हमारे पास अवेलेबल हो डाटा के जी कितने टोटल शहर में प्लांट्स हैं, कितने फंक्शनल हैं, और जो फंक्शनल हैं वो मोस्टली वासा वाले जो हैं वो उनको जो है चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो प्लांट्स हैं वो डोनर हजरात ने लगाए हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को देखना है, और कुछ डिपार्टमेंट्स ने लगाए हैं, लगा के कम्युनिटी के आगे उन्होंने जो हैंड ओवर किया था, तो वो फंक्शनल नहीं है। ये डाटा बैंक इंशाल्लाह आप जल्दी 2 हफ्तों में इसको कंप्लीट करवा के ताकि इसकी फंक्शनैलिटी को इंश्योर करेंगे, और इसके साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे भी हमें कोई फंड्स अवेलेबल हों, कोई डोनर अवेलेबल हो, तो वहाँ पे बच्चों का स्कूल हो तो वहाँ पे भी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएं। पानी की फराहमी के हवाले से इकदाम तेज कर दिए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान का कहना है कि कोशिश की जाएगी कि जो बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं उन्हें भी जल्द अज जल्द जो है बहाल किया जा सके, ताकि जो स्कूल और कॉलेजेस में तालीम हासिल करने वाली तुलबा और तालबात हैं वो साफ पानी पीने के मंसूबे को फंक्शनल किया जाए। आपका शुक्रिया गोहर रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में इंडस्ट्रियल स्टेट मसाइल का गढ़ बन गया। इंडस्ट्रियल स्टेट में गंदे पानी के जोड़ों की वजह से बदबू और मच्छरों की बहुतायत हो गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अमजद मलिक से। जी अमजद। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वो इस वक्त ज़बो-हाली का शिकार हो चुका है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मसाइल हैं। मसाइल की वजह से जो यहाँ पे इंडस्ट्रियल स्टेट के जो लोग हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो साथ की आबादी है वो भी परेशान है। सबसे बड़ा मसला अगर बात करते हैं तो रेलवे फाटक जो है, यहाँ पे ट्रेनों की आमदरफ्त होती है, जिसकी वजह से फाटक बंद होने की वजह से घंटों यहाँ पे ट्रैफिक जैम रहती है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो हुकूमत की जानिब से फ्लाई ओवर बनाने का मनसूबा था वो ताखीर का शिकार है, सिर्फ बातों की हद तक महदूद है। इसके साथ साथ सीवरेज के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, बहुत परेशानी होती है, हजारों लोग इससे वाबस्ता हैं। जो काफ़ी सारे देरीना मसाइल हैं उनमें से एक मसला, सबसे बड़ा मसला ये भी है कि यहाँ पर आने जाने के लिए जो अप्रोच है इसकी फाटक की, वो अक्सर बंद रहता है, जिसकी वजह से ताखीर बहुत ज़्यादा कार्गो में आने जाने में, स्टाफ के आने जाने में, मालकान के आने जाने में, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है। तो पिछले दिनों गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया था यहाँ पर जो फ्लाई ओवर बनाने का, लेकिन वो मंसूबा अभी तक ताखीर का शिकार है। इसके अलावा यहाँ पर अंदर पानी जगह जगह खड़ा हो जाता है। यहाँ पर ड्रेन का सिस्टम जो है वो अभी इतना मुनासिब नहीं है। वेस्ट वाटर की ड्रेन का जो आप देखेंगे 2-4 जगहों पर पानी खड़ा हुआ नज़र आएगा, और अक्सर आए दिन जो है वो बिजली भी जो है वो इतला दिए बगैर और अनशेड्यूल्ड जो है वो उसकी लोड शेडिंग की जाती है। इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर ही मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे बहुत है, इनके मुताबिक लोगों को परेशानी होती है। बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात जो हैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पे आते हैं, उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हुकूमत अभी तक सिर्फ दावे कर रही है, इसके ऊपर जो अमल दरामद है वो नहीं किया जा रहा है। इनका मुतालबा है कि फ्लाई ओवर भी बनाया जाए, जो सीवरेज का निज़ाम। अमजद मलिक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। RPO मुल्तान खुर्रम अली शाह
ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों के नुमाइंदगान से मीटिंग की और महकमों के दरमियान ताउन की सूरत हाल का जायजा लिया है। मुल्तान में RPO खुर्रम अली की मुख्तलिफ अफसरान से मीटिंग हुई है। DC कस्टम्स इमरान, ADC लोकल गवर्नमेंट हलीमा सादिया भी मौजूद थीं। SG इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अहमद भी मीटिंग में शामिल थे। मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स के नोट लाए जाएंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइन भी तैयार कर लिए हैं। आपको अपडेट करते चलें। मुल्क में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए प्लास्टिक करेंसी लाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। प्लास्टिक करेंसी के लिए 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये और 1000 रुपये के जदीद फीचर्स के नोट लाए जाएंगे। पेशावर यूनिवर्सिटी ने प्लास्टिक करेंसी के डिज़ाइन तैयार कर लिए हैं। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ खान, किस तरह से ये नोट डिज़ाइन किए जाएंगे, बताइएगा। यहाँ पे देखा गया है कि मुल्क भर में पाकिस्तानी जाली करेंसी की रोकथाम के लिए बहुत सारे इजलास भी हुए, जिसमें ये फैसला किया गया था कि ये करेंसी को खात्मे के लिए क्या इकदाम उठाए जाए। उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि प्लास्टिक मनी ही इसका वाहिद हल है। प्लास्टिक मनी के लिए जो पेशावर यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स है, उसने नई करेंसी की जो पूरा फॉर्मेशन बना के दिया, जिसमें जदीद फीचर के साथ प्लास्टिक मनी जो है वो 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये के करेंसी नोट का फीचर बनाकर दिया था। वो डिजाइन भी बना दिया गया। अब यहाँ पे जो करेंसी सभी मंडी वाले हैं, उन्होंने भी कंफर्म किया, कई बार ये कहा गया कि जो जाली करेंसी इसकी रोकथाम के लिए प्लास्टिक मनी को लाया जाए। और ये भी स्टेट बैंक को काफी बार जो है और काफी अर्से से प्लास्टिक मनी पे काम करने का कहा गया, लेकिन स्टेट बैंक जो है अभी तक प्लास्टिक मनी में काफी अर्से काम करता तो रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्लान नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि सब वाहिद है, क्योंकि बैरिंदा मुल्क भी मुस्लिम पाकिस्तानी और जाली करेंसी से उनकी भी शिकायत नहीं है, ATM से भी जाली करेंसी निकलने की शिकायत नहीं है। उसका वाहिद हल जो है वो प्लास्टिक मनी जिसका डिजाइन कर दिया गया है और उसको अब मंजूरी के बाद, यानी कि तमाम इदारों की मंजूरी के बाद जो उसको लाया जाएगा। नए और जदीद प्लास्टिक करेंसी मुतारिफ कराने का मकसद जाली करेंसी की रोकथाम है। अशरफ, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डेरा गाजी खान में मुशीर सेहत हनीफ पताफी का टीचिंग हस्पताल का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे आशिर इशफाक से। जी आशिर। मुशीर सेहत पंजाब मोहम्मद हनीफ खान पेताफी ने टीचिंग हस्पताल का दौरा किया है। टीचिंग हस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का भी जायजा लिया है। खास तौर के ऊपर टीचिंग हस्पताल में डॉक्टर्स की जो हड़ताल थी, यहाँ पर पहुंचे हैं, डॉक्टर्स से भी मामला तय हुए हैं, डिस्कशन की है। इस हवाले से बात करते हैं मुशीर सेहत पंजाब से। सर, डॉक्टर्स की गुज़िश्ता कई रोज़ से हड़ताल थी, आप खुद यहाँ पर पहुंचे हैं, डॉक्टर से मुलाकात भी की है आपने, यंग डॉक्टर के सदर भी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे हड़ताल के हवाले से, कब तक इनके मुतालबात पूरे होंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की हिदायत पे पूरे पंजाब में सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ख़ास तौर पे हम बात करते हैं डेरा गाजी खान की, तो मुझे याद है 2018 में डेरा गाजी खान में सिर्फ 18 बेड की गैनी होती थी, कोई पीड्स यूनिट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी, ट्रामा, पीड्स, डायलिसिस, गैनी, कार्डियक तमाम, और ख़ास तौर पे जो एक डायग्नोस्टिक सेंटर बनाया गया है उसमें MRI और CT स्कैन और मेमोग्राफी तमाम जो मशीन है वो फंक्शनल हैं और बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डॉक्टर जो जहाँ पे डॉक्टर अहमद मेरे साथ हैं, यहाँ पे MS साहब भी मेरे साथ खड़े हैं, तो ये भी सन ऑफ साइल हैं। आशिर इशफाक, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे न्यूज़ स्टूडियो से।